Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Saviram Karavahai Tejasvinavadhinamastu Ma Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. May God protect both the teacher and the student and help us grow. May we work together and become greater from our learning. So this is a very powerful prayer. So we have to apply what we learn in our lives as well, teachers. Okay? How many types of tenses are there, teachers? What are they? Present tense, past tense, future tense. What is present tense? What we are doing when? What we are doing now, right? जो अभी हो रहा है वर्तमान काल, that is जो हम अभी कर रहे हैं. What is past tense? What has happened? जो हो चुका है, that is past tense. Future tense, teachers? What is going to happen in the future? Thank you. Right? So ये तो basic definition सबको पता है between past, present and future. Simple present tense. Simple present tense जैसे कि नाम suggest कर रहा है. What is simple present tense? जो हम daily habits करते हैं, which we usually do, get up in the morning. हम क्या करते हैं सुबह उठ के? Daily एक जो हमारी habits है, what we do, like I wake up in the morning, I brush my teeth, I go for a walk. So all these daily habits make a simple present tense. Now how it does? Let's look at this example. Amar eats an apple in the morning. अमर सुबह सेब खाता है. मतलब वो इसका एक रूटीन है, टीचर्स, राइट? वो सुबह उठता है, he dresses up and then he eats an apple. तो उसकी जो डेली हैबिट है उसको हम प्रेजेंटली डिफाइन कर रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज प्रेजेंट टेंस. सो व्हाट इज प्रेजेंट टेंस बताइए? डेली हैबिट, जो आपका रूटीन है उसको डिफाइन करता है प्रेजेंट टेंस. ओके, गिव मी एन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, टीचर्स. I brush my teeth daily. I always speak the truth. I always Speak the truth. I always speak the truth. वो आपकी डेली हैबिट नहीं हो सकती पर, because that's a universal truth, है ना? क्योंकि आप हमेशा सच बोलते हो, right? That should be your daily habit. जैसे आप सुबह उठ के रोज, let's say you pray. I pray every day in the morning, है ना? तो वो जो आपकी डेली हैबिट होगी, that is aligned to simple present tense. ठीक है? I go for a walk. You know, I have my breakfast at 6:30 sharp in the morning. That can be simple present tense. और example बताइए teachers. I come to school at 7:50, right? That is your daily routine, right? वो आप रोज सुबह कर रहे हैं. So that is why it is also simple present tense. तो जो हमारी daily habits को define कर रहा है, that is simple present tense. Present tense को हम वर्तमान काल भी बोलते हैं, जो हमारी daily habits है उसको define करता है. Clear है? Any questions? Okay. Then comes present continuous. Now इसमें continuous word को आप लिख लीजिएगा अलग से. जब आप लिख रहे हैं ना अपनी नोटबुक्स में, टीचर्स, continuous को बस आप उसको अंडरलाइन कीजिएगा. Present continuous tense. Any idea present continuous tense क्या होता है? काम अभी भी चल रहा है या हो चुका है? थैंक यू, एक्सेलेंट. काम चल रहा है, ठीक है? एंड दैट इज व्हाई इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आप देखेंगे. यस, थैंक यू. किसने बोला? जोर की बोलिए. आईएनजी. सो ऑलवेज वेदर इट इज सिंपल, पास्ट या फ्यूचर, इसमें आईएनजी आएगा ही आएगा, टीचर्स. ओके, दैट इज द रूल ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है? सो रिमेंबर, अमर इज ईटिंग एन एप्पल. अमर सेब खा रहा है, मतलब अभी उसने खा नहीं लिया, ही इज इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द एप्पल. ठीक है? गिव मी अनदर एग्जांपल. I'm going to Vikasnagar. I am Going to Vikasnagar. Okay? Very good. Any other? You are teaching. Yes, you are teaching. Okay. What else? You are taking a class. Okay. Excellent. Right? So that means the process is still happening. Process complete नहीं हुआ अभी, teachers. ठीक है? When the process is happening,
that becomes continuous tense. ठीक है, अगर प्रोसेस हो चुका होता तो क्या हो जाता वो? Perfect. Very good, right? The action has completed recently would have become perfect. और अगर action हो चुका होता पहले तो that would have been past. Thank you. Thank you. सबको हरिओम। सारे अंग्रेजों को हरिओम। ओम आशीष। शुरू हो गए? बस अभी just अच्छा, खाने पीने से स्टार्टिंग हो रही है। वेरी गुड। अभी ना चलो। please. शायद परमानेंट भैया रात को काफी लेट आएगा। मैंने उनको कहा आप आराम करो, लास्ट में शायद आए। बैठिए ना सामने, प्लीज बैठिए। अभी आएंगे। सॉरी बीच में मैम के लिए फैन की जरूरत है सबको। ऑफिस वाले भैया लोग आगे एक्चुअली फैन की नॉइज इसमें आ रही होगी, तो अगर आप काम चल सकता है तो फैन बंद करना चाहता हूँ। तो वैसे खोल लें फैन शीशा देखिए। तो स्वामी जी अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है टेंसेस। तो बेसिक 3 टेंसेस थे जो अभी मैंने बताया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, दैट इज वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो अभी बेसिक हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट किया था, जिसमें कि जो हमारी डेली हैबिट्स हैं, जो हम रोज करते हैं, वो प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करते हैं। लाइक आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, आई ईट एन एप्पल डेली। सो जो हमारी डेली हैबिट्स है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो उसके बाद हम आए थे इस पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि देयर इज एन आईएनजी रूल जो अप्लाई हो जाता है इसमें हमेशा, बिकॉज इसमें एक्शन अभी भी हो रहा है, द प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे कि अमर इज ईटिंग एन एप्पल नाउ, ही हैज नॉट ईटन इट, अभी उसने खाया नहीं है, तो वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है। दैट इज व्हाई इट इज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसमें हमेशा वेदर इट इज सिंपल, पास्ट या फ्यूचर, इसमें आईएनजी जरूर आएगा। फर्स्ट वो जी बिल्कुल। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे करण जी इज टीचिंग मैथ्स, ठीक है, मतलब वो अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी पढ़ा नहीं दिया उन्होंने, ही स्टिल टीचिंग, दैट मींस वो प्रोसेस अभी चल रहा है पढ़ाने का। So that means it is still going on. That is, so the present continuous tense in Hindi expresses an action that is happening now in the exact moment. तो जो exactly आप अभी करा रहे हैं, जो प्रोसेस चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, पर अभी जो आपने स्टार्ट किया, that constitutes present continuous tense. Then comes present perfect tense. Now present perfect tense थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है टीचर्स, आप पहले ये लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दीपक, Done? Everyone? Yeah. Okay. So we use the present perfect tense to indicate that an action was completed not long ago. मतलब अभी हाल फिलहाल ही एक्शन खत्म हुआ है। Let's look at the example. हिंदी में पढ़ते हैं पहले। अमर सेब खा चुका है, मतलब हो सकता है कि उसने अभी खाया, हो सकता है उसने आधा घंटा पहले खाया हो, but the action has recently been completed. अमर has eaten an apple. पारुल स्कूल जा चुकी है, पारुल has gone to school. हो सकता है वो अभी 2 मिनट पहले गई हो या उसको 1 घंटा हो चुका है. So recently when the action has been completed, that constitute present perfect tense. Now एक एक एग्जाम्पल आप सब लिखिए अपनी नोटबुक में present perfect tense का, मुझे बताइए. Okay? I have taken my Hindi class. Okay, good. Dada has gone to market. Dada has gone to market. Okay. Mohan has gone to house. Mohan has Gone to gone नहीं बोलेंगे, gone is incorrect. Mohan has
Gone to house. फिर से बोलिए मैम. Gone to house. Mohan has gone to house. Good. Yes. I have reached to school. फिर से बोलिए. I have reached to school. I have reached to school. फिर से बोलिए. I have reached to school. Good. Yes. We will do a lot of exercises क्योंकि tenses को the only way to master tenses is by practice, practice and practice. और कोई तरीका नहीं है. So in my next session, I will be doing a lot of quizzes and exercises with you. अभी भी करूँगा, ऐसा नहीं है, पर वो खाली dedicated होगा खाली आपकी quizzes और exercises on tenses, so that you get clarity on each and every single tense. Practice करके. Any questions, teachers? समझ आ रहा है? Okay. Future tense. What is future tense? Bhavishya, right? So whatever action is going to happen in the near future, that is future tense, right? So let's look at it. The future tense is the verb from which you use to talk about things that haven't happened yet, which are going to happen in the future. When you say the party will be so fun, अभी आप गए नहीं हो किसी पार्टी में, but आप बोल रहे हो जो पार्टी होने वाली है that will be fun. Will be is in the future tense. Whenever you write or talk about things that you expect to happen later, you use the future tense. ये definition लिख लीजिए teachers of the future tense. Okay, because इसमें हम different types भी learn करेंगे, but basic जो definition है वो यही रहेगी, even in different forms of future tense. Okay. Now again, future. This is the division that we have. Simple future, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Just like we started by understanding the present, past, and future. तो इनको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे teachers. I want you to focus on this slide for some time. Used to donate an action that will happen in the future. ठीक है? कोई भी action जो future में होगा, जैसे अभी हमने example देखा. I will be eating an apple tomorrow. मतलब आज नहीं कल खाऊंगा. So anything that is going to happen. Future continuous used to indicate an action will be taking place in the future. अब इन दोनों सेम लग रहे हैं. अभी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस है. Future perfect used to represent an action that starts in the present and happens in the future. मतलब अभी स्टार्ट होगा लेकिन उसी वक्त खत्म नहीं हो रहा, वो आगे फ्यूचर में कभी भी खत्म हो सकता है. मे बी टुमारो और मे बी 10 years down the line. 10 साल बाद भी खत्म हो सकता है वो. That is why future perfect tense can be little tricky. थोड़ा सा आपको confusion दे सकता है, पर इसको मैं examples के through समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि future perfect tense कैसे और कहाँ use करना है. Then comes future perfect continuous, which means used to depict an action that is happening in the present and will complete at some point in the future. मतलब कोई हम specific time नहीं दे रहे उसे, ठीक है? उसमें हम time दे रहे हैं future perfect tense में कि वो it will happen at a time in future, but इसमें हम कोई time define नहीं कर रहे. Let's look at the examples, ठीक है? आप खाली इसमें बेशक broad categories लिख लीजिए, आपको definition लिखने की जरूरत नहीं है because I want you to understand. ठीक है? Definitions आप ना भी लिखे तो it's okay, but let's look at the examples. Depict मतलब show, Used to depict. वो दिखा रहा है, to show या to indicate कर रहा है उसको कि इस तरफ action हो रहा है. क्या इस pronunciation इसका क्या है? Depict. Okay. This is the rule that we follow. Subject plus the verb, auxiliary verb हम बोलते हैं जो action को वो करता है, define, ठीक है? Will plus the base form of the main verb plus the rest of the sentence, ठीक है? Then subject plus helping verb will, be plus verb plus, अब इसमें भी देखिए आप ing इसमें भी आएगा, ठीक है? Even in future continuous. Then future perfect continuous में subject plus helping verb plus have plus past participle form of the main verb plus the rest of the sentence along with the time frame. मतलब हम उसमें time define कर रहे हैं teachers. आप ये rule लिख लीजिए because this is important. Subject plus helping verb plus have plus been. अब been खाली इसी में आएगा last वाले में, ठीक है? अगर आप किसी और में यूज करोगे तो वो that will not be a future correct tense. This will be the right tense, that is future perfect. Been plus main verb plus ing plus the rest of the sentence. आप ये लिख लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इसके एग्जांपल शो करूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है.
ठीक है, जो भी काम करता है, जो भी किसी कार्य को डिफाइन करता है उसको हम कर्ता बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं खेल रहा हूं, इसमें वर्ब क्या होगा? खेलना, बिकॉज दैट इज द एक्शन, है ना, वो एक्शन हो रहा है, राइट, दैट इज वो। आई एम प्लेइंग वॉलीबॉल, इसमें क्या होगा? प्लेइंग। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? व्हाट इज द एक्शन आई एम डूइंग? आई एम प्लेइंग। प्लेइंग इज अ वर्ब, ठीक है। तो उसी तरीके से इन सब में जो हेल्पिंग वर्ब है, दैट मींस इट इज सपोर्टिंग द सेंटेंस। व्हेन आई से हेल्पिंग वर्ब टीचर्स, इसका मतलब है कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? कि वो मेन वर्ब है। मेन वर्ब मतलब कि उसके बिना आपका जो फ्यूचर टेंस है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। सॉरी स्वामी जी, ऑक्सिलरी को हिंदी में मुझे नहीं पता, क्या बोलेंगे? सहायक, सपोर्टिव, हाँ, मेन मेन को मुख्य, हाँ मुख्य बोल सकते हैं जी। हाँ, उसको सपोर्ट करता है, जो रिमेनिंग सेंटेंस को सपोर्ट करता है, तो मुख्य उसका जो सबऑर्डिनेट होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, उसको जोड़ता है उसको। जैसे उसको इंग्लिश में तो हम कंजंक्शन बोल सकते हैं, जो उसको ज्वाइन करता है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, जैसे आपने विल लिया है तो हम विल को हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, तो will और को इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब को हम ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब हम सेम जानते हैं, वी डोंट नो बट वी सेम। वो सेंटेंस में डिफर करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। एंड वैसे मेन वर्ब हमारी होती है, जो मेन वर्ब आप विल के साथ आएगा, आई विल गो टू द मार्केट, आई विल इज अ ऑक्सिलरी वर्ब, राइट, गो इज मेन वर्ब। वो इज द मेन वर्ब। अब वो सेंटेंस में देखो चेंज हो जाएगा, अगर इसको हम पहले ले करेंगे तो ऑक्सिलरी पहले भी आ जाएगा और हेल्पिंग बाद में भी चला जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं जी। तो आप उसको वैसे ही याद रखिए प्लीज, है ना, क्योंकि वो आप यूज्ड टू भी है और वो सही भी है, क्योंकि वो बुक में, मैं भी उस बुक को रेफर करता हूँ, पर मैं उसको ज्यादा वो इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ लेता हूँ, खाली ये फर्क है। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं टीचर्स, ठीक है ना, इससे क्लियर हो जाएगा। कार्तिक विल मीट मी एट द जिम। कार्तिक विल बी मीटिंग मी एट द जिम। कार्तिक विल हैव मेट मी एट द जिम। कार्तिक विल हैव बीन मीटिंग मी एट द जिम। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये एक्चुअली में है, लेकिन इसको हम ऐसे समझेंगे। लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन व्हिच इज सिंपल फ्यूचर टेंस टीचर्स। कार्तिक विल मीट मी एट द जिम, सिंपल फ्यूचर टेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्शन एक फ्यूचर में डिफाइन हो रहा है, दैट्स इट। इसको आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, सिंपल रखिए अपने दिमाग में भी, एक सिंपल एक्शन फ्यूचर में डिफाइन हो रहा है। अब ये कौन सा है? व्हाट इज द नेक्स्ट फ्यूचर? कॉन्टिन्यूअस। कार्तिक विल बी मीटिंग मी एट द जिम, मतलब वो कल मिल रहा होगा, राइट। मिल रहा होगा मतलब वो प्रोसेस चलेगा, राइट, वो प्रोसेस चलेगा। कार्तिक विल बी मीटिंग मी एट द जिम, क्योंकि उसने मेरे को मैसेज किया या जो भी बोला है तो वो मुझे कल मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज द प्रोसेस विल स्टार्ट इन द फ्यूचर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ही विल बी मीटिंग मी, विल जहां पे आ जाएगा आपको बस तुरंत सोच लेना कि ये हम आगे की फ्यूचर की बात कर रहे हैं। कार्तिक विल हैव मेट मी एट द जिम। अब यहाँ पे हमने टाइम, जो समय है वो क्लोज कर दिया मिल चुका होगा, है ना, करेक्ट है ना। हमने जो समय है उसको बांध दिया सेंटेंस में। देखिए, कार्तिक विल हैव मेट मी एट द जिम, ये मतलब वो मुझे कल मिल चुका होगा इस समय पे। अगर हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, कार्तिक विल हैव मेट मी एट द जिम एट 7 o'clock टुमारो, तब भी ठीक है। कार्तिक विल हैव मेट मी एट द जिम टुमारो, दैट इज आल्सो राइट। क्यों? क्योंकि हम उसको टाइम को डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम उसको नहीं भी कर रहे तब भी इससे आपको हिडन मीनिंग समझना है टीचर्स, जो इसमें विजिबल नहीं है पर आपको समझना है, क्योंकि कार्तिक विल हैव मेट मी एट द जिम। नेक्स्ट देखते हैं, कार्तिक विल हैव बीन मीटिंग मी एट द जिम। अब इसमें थोड़ा सा ग्रामेटिकली हमको लग सकता है कि इनकरेक्ट है, पर इसमें जो मेन रूल है टीचर्स वो है करेक्ट, हैव बीन, ठीक है। सो हैव बीन, जो आपने चारों फॉर्म्स लिखे उसमें जो हैव बीन का है दैट इज फ्यूचर परफेक्ट, यस यस। What will be the Hindi of the last sentence?
कार्तिक विल हैव बीन, कार्तिक मुझे मिलने के लिए जिम में आएगा। आ चुका हूँ। कार्तिक विल हैव बीन, कार्तिक मुझे जिम में मिलने के लिए मिलने आ रहा है। आ रहा होगा, आ रहा होगा, आ रहा होगा। हाँ, क्योंकि ये परफेक्ट में हो जाएगा ना। यस यस यस। कार्तिक मुझसे मिलने आ रहा हूँ। कार्तिक मुझसे मिलने आ रहा हूँ। सर मिल रहा होगा। कार्तिक विल हैव, क्योंकि ये आगे है ना, मिल रहा होगा। आगे फ्यूचर में। नहीं सर, मेरा मेल बॉब इज मिल कार्तिक विल हैव बीन मीटिंग मी एट द जिम। मिल रहा होगा। कब मिल रहा होगा? दिन में मिल रहा होगा। Has met me in the past, तो वो अभी हमने नहीं किया है। कार्तिक विल बी मीटिंग मी एट द जिम। मिल रहा होगा। कार्तिक मुझे जिम में मिल रहा होगा। अब इसमें और इसमें ज्यादा फर्क ये, करण जी जैसे आपने पूछा, कार्तिक विल हैव मेट मी एट द जिम, क्योंकि कार्तिक मुझे जिम में मिलेगा। मिल चुका होगा। हाँ, कार्तिक विल हैव बीन मीटिंग मी एट द जिम। एक और एग्जांपल करते हैं इसका, ठीक है? आप इसको कैसे, आप जैसे हम उसमें और लास्ट वाले में फर्क नहीं आ रहा। मीटिंग मीन्स सेकंड और लास्ट। हाँ, कार्तिक वो मिल रहा जिम होगा। में मीटिंग कर रहा होगा मीन्स वो पहले से प्लानिंग है, इसमें ही बनेगा नहीं, इसका शेयरिंग भाव- मीटिंग कर रहा होगा। लेकिन उसने ये देखो ना, कार्तिक विल हैव बीन मीटिंग मी एट द जिम, ये एक्शन फ्यूचर में खत्म हो रहा है पर अभी स्टार्ट हो रहा है। बारे में आजकल देयर आर लॉट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स, हमें पता है राइट? क्या करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स? टीचर्स मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट कैसे करते हैं? डंडे से? बताओ क्या करते हैं? बाय द वर्ड्स, द वे दे डू देयर एक्शंस, वो जो काम करते हैं उससे मोटिवेट करते हैं, ठीक है? ऐसे ही एक जेंटलमैन का वीडियो, ही इज अ मॉन्क, ओके, ही इज अ वेरी फेमस मॉन्क एंड ही वाज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है? एक मल्टीनेशनल कंपनी ह्यूलेट पैकवर्ड में काम करते थे, बहुत साल उन्होंने काम किया और उसके बाद ही जस्ट हैड एन अर्ज कि मैं ये सब छोड़ दूंगा और मुझे मॉन्क बनना है। एंड ही वेंट टू इस्कॉन। इस्कॉन सुना है सबने? जी। तो उन्होंने इस्कॉन में की, खूब सेवा की उन्होंने, खूब अच्छे से जो आते थे सबके बहुत भक्ति की, बहुत प्रेम से रहते थे। उसके बाद उन्होंने डिस्कोर्सेस देने स्टार्ट किए इस्कॉन में, ठीक है? डिस्कोर्सेस देने स्टार्ट किए और आज वर्ल्ड के हर पार्ट में वो डिस्कोर्सेस दे रहे हैं। ही इज सो इन्फ्लुएंशियल, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, यू नो, यंगस्टर्स उनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड है क्योंकि वो जो बात करते हैं इट इज सो प्रैक्टिकल एंड येट इट यू नो इट इज सो डीप कि मतलब जो हम डेली लाइफ में करते हैं टीचर्स, वो बहुत काम आता है, ठीक है? सो लेट्स लिसन टू दिस वीडियो एंड देन वी विल डिस्कस। सुना है इनका नाम? गौर गोपाल दास जी? किसी ने नहीं सुना? ओके, आपने सुना है, ठीक है? ओके, लेट्स वॉच दिस। उसके बाद हम लोग और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएंगे ये। मैं कुछ बताता नहीं हूँ, लेट्स लिसन। That money cannot buy happiness. How many of you heard it? Right? है ना? पैसा आपको खुशी नहीं ला सकता। करेक्ट? कितना भी ले लो नहीं आएगा खुशी। ऐसा आएगा ना, उड़ उड़ के आएगा तब भी नहीं आएगा खुशी। नहीं आएगा खुशी। करेक्ट? How many of you believe that money actually cannot buy happiness? It can buy you things, but it can't buy happiness. You all believe? Great. Now, how many of you believe but still want more money? Look at that now. All of you guys raised and said, "ये हाथ से उठाया, money can't buy happiness, but I want more." Isn't that true? With your left hand you say, "Money can't buy happiness." With your right hand say, "Actually चाहिए प्रभु." Oh God! If you're Marwadi Gujarati, thriller. I'm Marwadi. I used to be. I still am actually. And whoever's Gujarati here is Gujarati. No problem. Marwadi Gujarati are the most amazing communities doing so much service, contributing, earning and giving. Greatest charity work is done by these people. You know? लेकिन नाम खराब है बेचारों का. And they don't mind being joked at. They never take offense. Others take offense. मारवाड़ी गुजराती बोला और बोलो प्रभु. One Gujarati guy wrote on our Facebook, "Thank you for making us famous by cracking jokes on us." उसने लिखा मेरे को Facebook पे. मैं बोला ठीक है और 4 सुनाता हूँ मैं, don't worry. Oh God, can you imagine? There was a
Marwadi lawyer and Gujarati doctor. And the Gujarati doctor. This actually happened with him, with Gaur Gopal Das ji. So अब ये जो incident बताने वाले ना इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, because it's such a of course it's a laughing riot, but also there's such a deep meaning that comes out of this, that people just want what they want. They don't think about others. ठीक है, अगर हमें कुछ चाहिए तो हम खाली अपना सोचते हैं. ठीक है, हम ये नहीं सोचते कि दूसरा दे पाएगा या नहीं, वही मुझे तो चाहिए. ठीक है, तो let's watch this. बस ये बोलना चाह रहा था. Let's continue watching. Poor fellow, he just wouldn't get a job. So he decided to start a clinic. And on top of this clinic, he wrote 20 rupees to get any problem solved. If problem is not solved, 100 rupees back. So Marwadi lawyer passed by. He saw, इसको तो उल्लू बना सकता है पता नहीं उसे. 20 रुपया बोलता है और बोलता है अगर ट्रीट नहीं होगा तो 100 रुपया वापस देगा. अभी तो 100 निकाल के रहूंगा मैं. So the Marwadi lawyer came and he said to the Gujarati doctor, "Sir, I have lost my taste. Can you bring it back?" So the doctor told his compounder, bring bottle number 22 and put some drops on his tongue. So the compounder brought and put few drops from bottle number 22 on the tongue of the Marwadi lawyer. And he shouted, "Hey, what is this? This is petrol." He said, "You gained your taste back. Give me 20 rupees. Give me 20 rupees. So the Marwadi lawyer was like, "Now, man, I have to do something about it now." So the next time he went and went to the doctor. He said to the Gujarati doctor, "Doctor, I'm sorry, but I have lost my memory. Kuch yaad nahi. Can you treat, please?" So the doctor told the compounder, "Can you bring bottle number 22 and put a few drops?" He said, "That's petrol." Doctor said, "Memory back. Give 20 rupees. Your memory is back. Now pay back 20 rupees." The third time this Marwadi lawyer said, "Now I have to crack this guy, you know." He went again to the doctor and said, "Doctor, I've lost my eyesight. Can you bring my eyesight back?" He said, "That's the only problem we cannot cure." So told the compounder, 100 रुपया दे उसको. So compounder ने 20 ही दिया. तो बोला 20 रुपया, बोला eyesight मिला ना, चला 100 रुपया. I tell you, smart guys, you know, could you bet the marus? But with all the money we may get, whichever way, jokes apart, we can buy so much stuff, and all the stuff that we have is utility value, not happiness value. A laptop has utility value. A phone has utility value. A car has utility value. A house has utility value. Clothes have utility value. Don't ascribe happiness value to something that only has utility value. Utility है भगवान की दया से बड़ी गाड़ी मिले चला लो, लेकिन उसमें सुख मत ढूंढो ना. सुख कहाँ से मिलेगा? उसमें है ही नहीं. उसका तो काम करने के लिए बना है. गाड़ी सुख के लिए थोड़ी बनी है, वो तो ट्रैवल करने के लिए बनी है. अच्छी है, स्टेटस बन गया, भगवान की दया से बड़ी मिल गई, ले लो, कौन मना कर रहा है? लेकिन उसमें सुख ढूंढो. हाय हाय. But we all have these desires and we all keep fulfilling these desires. In your early 20s till late, as in this 20s, you have this wrong concept of happiness. Let me work hard, let me get all the money, let me buy all of that stuff, let me get all the phones, let me have those palaces, let me have my dream house, let me have my dream girl, and I'll be happy. You dream. All 20-year-olds between 20 and 30 are dreamers. And there's nothing wrong with dreaming. There's nothing wrong with earning, and there's nothing wrong with having. But to dream that this is what will make you happy, I'm sorry to say, I'm just saying, don't make the mistake of equating your happiness with something that only has utility value. Yes, you just liked it? Yes. Yeah, a good break in between. Huh? Yeah. So it's such a. What did we understand in the video? Anyone? Yes, sir. Yes, ma'am. सर इस वीडियो में मतलब मैंने स्पेशली सीखा कि जैसे कि
हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हर चीज़ में हम लोग वो ढूंढते हैं, मतलब जैसे इसमें बोल रहे हैं ना कि Happiness, आराम कोई भी मिलता है। चीज़ है वो यूज़ करने के लिए आती है, लेकिन हमें तो ढूंढते खुशी, बढ़िया फोन मिलेगा तो वो सारी चीज़ें। थैंक यू। यस, डू वी एग्री? Yes, sir. Yes, तो ये Things तो cannot give happiness. Things are not give happiness and we know that, right? ऐसा नहीं हमें नहीं पता, पर फिर भी हम बहुत खुश हो जाते हैं ना चीजें लेके, उसमें लाइक वी गो इनटू अ डिफरेंट जोन, हम पागल से हो जाते हैं। अरे वाह यार नया आ गया, मैं अब अगली चीज ये लूंगा, ठीक है? और ये क्या है? ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारा नेचर है ये, ठीक है? एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड टू मेक यू सी दिस वीडियो, बिकॉज योर आइडिया ऑफ हैप्पीनेस टोटली लाइज ऑन यू। किसी और को डिफाइन मत करने दो, यू नीड टू बी हैप्पी योरसेल्फ। किसी और को नहीं बोलना चाहिए कि यार अगर तेरे पास ये आ जाएगा ना तो तू बहुत खुश हो जाएगा। नहीं यार, मैं बहुत खुश हूँ, आई ऑलरेडी एम वेरी हैप्पी, ठीक है? आई वांट टू स्टे लाइक दैट, ठीक है ना? पर ये मत सोचो कि अगर इफ आई गेट दिस थिंग, तो दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज सच अ इंस्पिरेशन, यू नो। मैं आई ऑलवेज शो इट टू ऑल माय स्टूडेंट्स एज वेल, बिकॉज इसमें एक तो क्या एक मॉरल वैल्यू अटैच्ड है, और दूसरी चीज इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, ठीक है? दैट यू नो हाउ वी लिव आवर लाइफ। We need to keep it simple. We need to always be kind, polite, courteous, and the way we treat people, we should always be treat others the way we want to be treated. दूसरों के साथ वैसे व्यवहार करना चाहिए जैसे हम अब खुद से व्यवहार चाहते हैं, ठीक है ना? ये हमेशा याद रखिए प्लीज स्टूडेंट, टीचर्स, राइट? बिकॉज इफ यू डू दैट यू आर ऑलरेडी हैप्पी, ठीक है? आप किसी को unintentionally भी you will not hurt others. Great. Yes. Sir, what is the Hindi meaning of courteous? Courteous means Politeness. politeness को हिंदी में हिंदी में विनम्रता, विनम्रता, विनम्रता। थैंक यू। सर से ना प्रश्न पूछे करें, जैसे इस प्रश्न में पूछा ना, इसका मतलब ना समझाए प्रेम से पूछ लो कि क्या बताओ इसका। Use. और सर आप हमें स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, आप हमें टीचर्स नहीं बोल सकते। हाँ। आप ऑल ऑफ पर मुझे टीचर्स, क्योंकि आप इतना अच्छा नोबल काम कर रहे हो तो टीचर्स एक ज्यादा वो लगता है मुझे। इन क्लास भी Of course you are, of course I treat you like my students only, of course, of course. आपको हैबिट है ना, आप स्टूडेंट्स नहीं बोल देंगे तो वो भी हाँ, ठीक है, ठीक है। Your words, this are used to, that will run. Of course I will, okay, thank you. ओके, अब मैं एक आपको टीचर से एक चार्ट दिखाने वाला हूँ, ठीक है? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इनफैक्ट दिस इज द फाउंडेशन ऑफ टेंसेस, ठीक है? करण जी, इनफैक्ट मैं एक काम करूँगा, आपको एक इसका वो भेजूंगा, आप एक प्रिंट आउट सबको दे दीजिएगा फॉर ऑल टीचर्स। हाँ जी, ठीक है, स्टार्ट, ठीक है? तो लेट्स सी, ठीक है ना? इसमें प्रेजेंट में आप देखिए, सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस पे खाली अभी एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है? शी drives a car is right or wrong? Thank you. क्या होना चाहिए? Thank you teachers, excellent. She drives a car. She goes to school is right? ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है, अभी हो रहा है ये काम, ठीक है ना? तो दैट इज व्हाई दिस इज प्रेजेंट। अब आते हैं कॉन्टिन्यूस में, शी इज ड्राइविंग अ कार, ठीक है? सिंपल कॉन्टिन्यूस। शी इज गोइंग टू स्कूल, करेक्ट? आईएनजी का ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी जरूर आएगा, ठीक है? सिंपल परफेक्ट में आ जाते हैं, शी हैज वेयर द एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड रिसेंटली, याद रखना रूल, ठीक है? शी हैज ड्रिवन अ कार, ठीक है? शी हैज गॉन टू स्कूल। अब इसमें हम ये नहीं बता रहे कब गई है, अभी रिसेंटली एक्शन हुआ है, तो हमने उसे डिफाइन नहीं किया है, प्लीज याद रखिए टीचर्स, है ना? जो हम कंफ्यूज हो रहे थे पिछले एग्जांपल में, इसीलिए मैं आपको ये चार्ट फिर से दिखा रहा हूँ, सो दैट इससे क्लियर हो जाए। शी हैज ड्रिवन अ कार मतलब वो एक्शन अभी रिसेंटली हुआ है, शी हैज गॉन टू स्कूल। लेट्स कम टू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, शी हैज बीन ड्राइविंग अ कार, ठीक है? मतलब अब ये सिंपल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब एक तो ये शी हैज बीन ड्राइविंग अ कार मतलब अभी भी कार चल रही है, शी अभी भी चला रही है, yes, ठीक है? तो वो प्रोसेस अभी चल रहा है या खत्म हो चुका है? थैंक यू, चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, यस, ठीक है ना? एक और एग्जांपल, शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल मतलब अभी भी स्कूल जा रही होगी अपनी फ्रेंड के साथ, जिसके साथ भी, ठीक है ना? वो प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू हो रहा है टीचर्स, ठीक है? लेट्स कम टू पास्ट।
पास्ट हमने अभी पढ़ा नहीं है डिटेल में, पर मैं फिर भी इस चार्ट के थ्रू आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। अभी हम करेंगे डिटेल में, ये मत सोचना कि मैं खाली ये चार्ट के थ्रू करूंगा। आई हैव एक्सरसाइजेस फॉर एवरी टेंसेस दैट वी विल कवर। ओके टीचर्स? ओके, सिंपल पास्ट, शी ड्रोव अ कार। इसमें एक रूल बस याद रखिएगा, पास्ट में, सिंपल पास्ट में, द एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, एक्शन हो चुका है पास्ट में, ठीक है ना? शी ड्रोव अ कार, शी वेंट टू स्कूल, मतलब वो स्कूल जा चुकी है, पीरियड, खत्म, एक्शन पास्ट में हुआ था, खत्म हो चुका है एक्शन पास्ट में। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई, इसमें भी एक्शन खत्म हो चुका है पास्ट में। पूछ बताओ कैसे? नहीं गई। नहीं गई है, the action has been completed. Will it be past? कैसे? Correct, correct. Clear sir? नहीं। Sure, teachers? ठीक है ना? That is why. Continuous में, she was driving a car. वो कार चला रही थी। She was going to school. She was not going to school. वो नहीं स्कूल जा रही थी। Correct. Again, past perfect. She had driven a car. Yes. वो कार थी। Right, right. She had gone to school. School? गई थी। She had not gone to school. वो स्कूल नहीं गई। Simple. She had been driving a car. वो कार चला रही कार चला रही थी थी। या चलाती रही थी। चलाती रही थी या चलाती रही थी, क्योंकि अगेन ये हम क्या कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट बोलने में कंटिन्यूअस। अच्छा नहीं लगता नहीं। तो वो चलाती रही थी। She had been going to school. अब अगर हम इसको लिटरली देखो, it doesn't make sense. आप देखो, अगर इसको आप लॉजिक लगाओ अपना, टीचर्स, ऐसा हो सकता है कोई हमेशा ही स्कूल जाता रहेगा? पॉसिबल है? नहीं। तो दिस इज ओनली फॉर एग्जाम्पल टीचर्स। और आप अगर एग्जाम्पल्स देखोगे यूट्यूब पे भी, गूगल पे, कहीं पे भी, स्वामी जी की बुक पे भी, तो वो एग्जाम्पल्स सेंस करेंगे, रूल के साथ मैच करेंगे, पर उनमें लॉजिक नहीं ढूंढना, क्योंकि अगर आप लॉजिक ढूंढने बैठ गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? क्योंकि रैशनली ये लॉजिकली सही नहीं है। लॉजिक ऐसा कि कोई स्कूल जाता है, स्कूल ही जाता रहेगा? नो, राइट? शी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, राइट? शी हैड, उसने स्कूल नहीं गई हो। फ्यूचर जो अभी हम कर रहे थे, शी विल ड्राइव अ कार, आगे करेंगे, शी विल गो टू स्कूल, स्कूल जाएगी। शी विल बी ड्राइविंग अ कार, शी विल बी गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रही थी। Excellent teachers, well done. She will have driven a car. अच्छा, इसमें और इसमें क्या फर्क है? She had driven a car, she will have driven a car. इन दोनों में क्या फर्क है बताओ? Good. Now इसमें देखो, she had आ गया ना टीचर्स, राइट? तो वो एक्शन पास्ट में हो गया, ठीक है ना? अब इसमें she will have, मतलब will मतलब फ्यूचर, ठीक है? So that should quickly ring a bell in your head कि हाँ, हम ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और because इसमें एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया, so that is why we are talking about past है। Then she will have gone to school. She will have been driving a car. अब ये वही आ गया कार्तिक वाला। This is the same as Karthik one, right teachers? She will have been gone to school. Yes? वो स्कूल जाती रही वो आगे स्कूल जाती रही होगी, ठीक है? जब तक दुनिया चलती रहेगी। अगेन अब देखो ना, उसको हम फिलिंग द ब्लैंक्स करें, अगर एक तरीके से देखा जाए तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें लॉजिक मत ढूंढना टीचर्स, ठीक है? रूल के हिसाब से ये एग्जांपल्स है, तो अगर आपको रूल क्लियर हो जाएगा, you will be able to understand the examples. पर अगर आप देखोगे कि यार ये लॉजिक तो बैठ नहीं रहा मुझे सही से, then you will get confused. तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें रूल्स को सिंपल रखना है अपने दिमाग में। एंड करण जी, आप ये चार्ट टीचर्स को दे देना, ठीक है ना सर? हाँ, आप इस चार्ट को हमेशा अपने पास रखना एज अ रेडी रेफरेंस। जब भी आप टेंसेस कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, यू शुड हैव दिस चार्ट। ओके, एक एक्सरसाइज करते हैं टीचर्स। Okay.
Now, he currently lives with his parents. He currently lives with his parents. Simple present everyone? Yes, sir. किसी को डाउट है? No, sir. क्यों सिंपल प्रेजेंट है? I went to the bus stop and waited for the bus. Some parts of Italy have become drier. कौन सा? Exactly. I still haven't had the necessary documents for the interview. मुझे अभी भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले. I still मतलब अभी, ठीक है? करेक्ट. तो हम अभी की बात करें तो of course it is present. Thank you. She works as a lab technician. करेक्ट है ना? क्योंकि अभी वो she is working as a at this profession. She plans to pursue a degree. At that time, I had a job as a physiotherapist in a hotel. Why simple past? मेरे पास as a job थी होटल में, ठीक है? That action has been completed in the past. I attempted to ignore them, and when the bus arrived, I boarded and took a seat. पहले इस सेंटेंस को जल्दी मत करना, पहले समझना है सेंटेंस को. I attempted to ignore them, ठीक है? मतलब मैंने चूज कर दिया कि मैं नहीं जानता इनको कौन है. And when the bus arrived, और जैसी बस आई, I boarded and took the seat. Simple? Okay. Let's have a look. Excellent. Well done. These are the answers. ठीक है? Simple present, simple past, present perfect. Okay, present perfect. हमने फोर्थ वाला गलत बोला था, right? I still haven't had the necessary documents. Present perfect. Present perfect बोला था हमने? Yes, sir. Okay, okay. Rest is everything. Good job, teachers. Excellent. Okay. एक और एक्सरसाइज करेंगे सिंपल फ्यूचर की. ठीक है? अब इसमें मैंने एक पैसेज निकाला हुआ है, ठीक है ना? हमें अपना अब इसमें लॉजिक लगाना है, ठीक है टीचर्स? बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. आई विल रीड दिस पैसेज और आप खुद बताएंगे, ठीक है ना? आराम से. टुमारो I met my friend George. ठीक है? सॉरी, met मिसिंग है इसमें. Tomorrow I met my friend George. We dash to the movies. We We will go. ओके, एक मिनट. पहले ये देख लो, ये कौन सी एक्सरसाइज है? सिंपल फ्यूचर. तो ये हम आगे की बात कर रहे हैं. सो नाउ थिंक. We will go to the movies. Will, जहां will आ गया वहां पे हम फ्यूचर की बात करें. We will go to the movies and then we dash our dinner We will have. and then we will have our dinner at the new fast food place. In the afternoon we will visit George's uncle and play table tennis in his garden. ठीक है? Then we will walk. walk around in the where we We will have. We will take a look at the shops. we will Have their taste. we will yes बोलिए. Yes, we will have a look at the shops. होता है ना विंडो शॉपिंग टीचर्स? तो हम कुछ लेंगे नहीं, but we will have a look at the shops. Thank you, good job. Maybe I will buy. will buy new. ठीक है? हो सकता है मैं खरीद लूं. ठीक है? We dash back before 6 o'clock. We will be back before 6 o'clock. We will not be. I think We will not be. We will have a great day. We will have a great day. We will have yes, of course. I think we will have a great day, right? Because ये हम all in the future की बात कर रहे हैं, right? So it is all about future, right? So simple future में different forms जो आपने लिखे हैं, उसको याद रखिएगा कि अगर हम पैसेज में भी अगर आप उसको फिल करते हैं, रूल्स चेंज नहीं होंगे, रूल्स सेम रहेंगे टीचर्स.
बट इट इज जस्ट दैट वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड पैसेज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने स्वामी जी की बुक को रेफर किया है, सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए खाली मैं बता रहा हूं, ये पैसेज वहीं से है, ठीक है। तो अगर आप उसमें देखोगे तो उन्होंने उसमें एग्जांपल्स में दिया भी हुआ है कि इसमें इसकी जगह क्या आएगा। जैसे उन्होंने राम और शाम लिखा होता है, वहां पे स्लैश करके लिखा होता है विच वर्ब फॉर्म, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप पैसेज में पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कोई भी फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको रूल्स रिमेंबर रखने हैं टीचर्स के, कौन सा रूल आएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? डेली हैबिट्स, रूटीन्स जो हम फॉलो करते हैं। सिंपल पास्ट, action has been completed in the past, ठीक है। Simple future will take place in the future. Example of simple present, Simple present. I brush my teeth. I take an apple every day. yes, our daily routine. Thank you. Simple past, I went to the market. I went to the market. Action has been completed, ठीक है, in the past. Simple future, I will wash my clothes in the near future, ठीक है ना। तो I will wash my clothes will आते ही the action has been performed into the future. ये एग्जाम्पल आपने नोट किया था सबने? इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए। सर आपके लिए पानी अगर सर हम इनको टेंस को जैसे अभी हमने सीखा जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारा वे जो रहता है बच्चों को पढ़ाने का वो टेंसेस का ही रहता है कि जैसे प्रेजेंट डेफिनेट आपने बताया तो फिर आप पास्ट डेफिनेट बताते हो, फिर आप फ्यूचर डेफिनेट बताते हो ताकि वो स्कूल जाता है, जाता था, जाता जाएगा। लेकिन जब आप प्रेजेंट कराते हो तो आप पहले प्रेजेंट के सारे फॉर्म्स करते हो? अच्छा अच्छा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एक साथ करते हो? डेफिनेट है तो तीनों का डेफिनेट करवा देंगे, तीनों को अच्छा एक साथ। ओके ओके, मतलब हम ऐसा ही मैं समझ गया। ऐसा ही करवाते हैं। ठीक है ठीक है। तो ऐसे पर आपने अभी जो प्रेजेंट का फ्यूचर का सब आपने अलग अलग ली, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि क्योंकि अगर आप इनको अलग अलग समझोगे ना तो उसमें जो एक्सरसाइजेस आती हैं उसको करने में आसानी हो जाएगी। अगर मैं आपको जैसे एक साथ ही सिंपल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक साथ में करा दूं, अब वो मैंने रखा हुआ है एक्सरसाइजेस के लिए, ठीक है। जब हम एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करेंगे उसमें मैं आपको उस तरीके से करूंगा, पर पहले मैं एक बेसिक वो अंडरस्टैंडिंग जानना चाह रहा अभी था। आप ये टेंस और भी इसको और एलिब्रेट करोगे? अभी और है, बहुत है अभी। हाँ, क्योंकि अभी एक टेंस से आप इंडेफिनिट को अभी और पढ़ाओगे तो अभी हर एक टेंस का मैं आपको बताता हूँ करण, कि अभी हर एक टेंस का मैंने एक क्विज लेना है जिसमें क्विज में एटलीस्ट 8-10 वर्कशीट्स हैं प्रैक्टिस, जो मैं मतलब ये नहीं कहूंगा कि आपको दे दूंगा आप कराओ, नहीं, यहीं पे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बैठ के खोलेंगे और आपको मैं जैसे नोटबुक पे जैसे आप सेंटेंसेस लिखेंगे टीचर्स और आप उसको फिल करेंगे। बिकॉज़ आई थिंक तो- वी नीड मोर एग्जांपल्स। हाँ, तो वही एग्जैक्टली। तो आज तो मैंने खाली एक आइस ब्रेकर किया टेंसेस का, क्योंकि मैं समझना चाहता था टीचर्स आपको कितनी नॉलेज है टेंसेस की, ठीक है। तो अभी दिस इज नॉट, वी हैव गॉट नॉट इनटू अ डीप डिटेल्स ऑफ टेंसेस, अभी मैंने थोड़ा सा टच बेस ही किया है, क्योंकि अभी नेक्स्ट नॉलेज तो है क्योंकि बुक स्वामी जी की सबने लगभग पढ़ी है और पढ़ भी रहे हैं। ठीक है। पॉइंट इज दैट कि आपको जब यूज करना है, लाइक मोस्टली जैसे परफेक्ट की बात करें तो हाँ, हाँ। कंटिन्यूस की बात करें, मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो
कई बार ये होता है जैसे पैसिव है, जी तो पैसिव का स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर सा होता है। हाँ हाँ तो आप कंफ्यूज होते हो कि जब आपको यूज करना है एक्चुअल में, तो उस टाइम पे आपको कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर और वो आपका कहीं क्लैश कर जाता है। वो वो एग्जाम्पल्स जो चीजें हैं वो कैसे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो हम इसको भी हम याद कर लेंगे। नहीं, याद नहीं, ये याद नहीं करना है। देखो, ये पर्पस मेरा याद कराना कुछ भी नहीं है, पर्पस ये है कि हम प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इसीलिए मैंने अभी ये जो खाली ये बताया कि मैंने खाली इस तरीके से इसको ब्रेक किया है टेंसेस को, ताकि हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो फॉर्म्स है वो पता लग जाए। जैसे आपने बताया ना कि आप जैसे अपनी बुक के थ्रू इस तरीके से करते हैं, तो वो जब अब मैं नेक्स्ट सेशन में जो मैं लूंगा उसमें एक्सरसाइजेस करवाऊंगा खाली, उसमें अब हम ये टेंसेस में नहीं घुसेंगे, अब उसमें हम सीधा एक्सरसाइजेस आएंगे। और जैसे पहले मैं लूंगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की, ठीक है। अब इसमें एक सेंटेंस होगा, जैसे मैं उसको पढ़ूंगा, जैसे हमने ये अभी एक एक्सरसाइज की थी, अब उसमें ऐसी डिफरेंट एक्सरसाइज होगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अभी तो मैंने जस्ट इसको वो किया है, पर इन द नेक्स्ट सेशन जो मैं करना चाह रहा हूँ, जो मेरे विचार में, यू टेल मी टीचर्स अगर आपको हेल्प होगा, जैसे करण जी बता रहे, मैं खाली एक्सरसाइजेस कराना चाहता हूँ टेंसेस की, क्योंकि टेंसेस थ्योरी नहीं है, ठीक है ना। टेंसेस थ्योरी नहीं है, टेंसेस तो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना उसको वर्कशीट को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, तभी आपको उस पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। और जैसे कि इन्होंने बताया कि जो बुक के थ्रू जो आप फॉलो कर रहे हो वो तो करना ही है आपने, पर हम यहाँ पे थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उससे क्या है, उससे आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसे में मैं ये चाह रहा हूँ, आप बताइए अगर आप उसमें कुछ और चेंजेस चाहते तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है सर। Sir, my question is, हाँ जी। almost teachers जिनके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है जी, या जी, जो जी। ऑलरेडी Different subject के teachers है, जी। तो ऑलमोस्ट सबके टेंसेस ऑलमोस्ट मींस क्लियर है, लाइक, और बट स्टिल लाइक वी आर द लैंग्वेज टीचर, इंग्लिश लैंग्वेज English टीचर, language. we know grammar everything, Right. but still we can't converse and we can't express ourselves. So Hmm. grammar we have learned a lot, we have Hmm. been given classes by Swamiji especially. So grammar से means does it help us to improve? It will help, but thank you for your. I think ये सबकी प्रॉब्लम है जो सर बता रहे हैं, राइट। आई थिंक एवरीबडी फेसेस चैलेंजेस, है ना, कि यार कोई पूछ लेता तो यार मेरे को इसका मीनिंग ही नहीं पता था, यार मैं क्या जवाब दूं उसे। सबको होती है ये प्रॉब्लम यार, इवन आई फेस सम प्रॉब्लम्स यार। इसने पूछा तो मैं, लेकिन क्या करता हूँ, फटाफट एक पॉकेट डिक्शनरी रखता हूँ, फटाफट ढूंढता हूँ मीनिंग। मतलब ये नहीं कि मतलब मुझे ज्यादा आता है, पर ये कि भैया अपने को पता तो होना चाहिए यार। किसी भी तरीके का लोग मिल सकते हैं, एटलीस्ट अपनी नॉलेज के लिए पता हो। अब इसका मैं आपको आंसर दे रहा हूँ सर। इसके लिए जो सर ने बोला है, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। गलत सही नहीं सोचना, बात करो इंग्लिश में यार, अपने बच्चों से बात करो, अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली से, सबसे इंग्लिश में थोड़ी बात करो डेली। सेकंड चीज जो मैंने लास्ट टाइम भी बोली थी, मुझे नहीं पता कितने लोग कर रहे हैं, हैव वी स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश स्टोरी बुक्स? हाथ ऊपर कर दो जो हाँ है। ओके, किसी ने नहीं किया, आपको छोड़ के। थैंक यू। क्यों आप कर रहे हो? थैंक यू करण जी। टीचर्स करना है यार, प्लीज, नो मैटर हाउ बिजी यू आर, आपको ये करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक पूरी स्टोरी बुक पढ़ के सोनिए रात को, नहीं, एक पेज पढ़िए रोज, ठीक है, उसमें अंडरलाइन कीजिए, कोई वर्ड समझ नहीं आता, दैट इज हाउ यू विल इंप्रूव योर स्किल, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो मैं जितनी मर्जी क्लासेस ले लूंगा, आपका स्किल कैसे इंप्रूव होगा? यू हैव टू फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग यू ना, आपको फॉलो तो करना ही है, ठीक है। जितने भी बिजी आपको टाइम निकालना है टीचर्स फॉर योरसेल्फ, ठीक है। तो आपको एक पेज पढ़ना, जैसे मैंने आपको कुछ ऑथर सजेस्ट किए थे लास्ट टाइम, हमने वीडियो देखा था सुधा मूर्ति जी का, याद है? यस, कडली बन बनाना, द चाइल्ड डिड नॉट हैव बनाना, राइट। सुधा मूर्ति जी की बुक्स पढ़िए प्लीज, आई विल रेकमेंड यू सम बुक्स, ठीक है। शी इज अ वंडरफुल ऑथर, ठीक है, और सिंपल इलैबोरेटिव बुक्स शी राइट्स, ठीक है, एंड सो इंस्पायरिंग। और ये नहीं कि बच्चों के लिए, बड़े भी पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास मेरे एक शेल्फ पे खाली सुधा मूर्ति जी की बुक्स है। आई एम सो फॉन्ड ऑफ हर बिकॉज द वे शी टेल स्टोरीज, मुश्किल से मुश्किल चीज को भी एक स्टोरी के फॉर्म में बता देती है वो। सो इट्स गुड, क्योंकि आप जब तक हैबिट नहीं डालोगे, ठीक है, आप ये बोलोगे यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे को घर के इतने काम करने हैं, मेरे पास ये है वो है, तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। आप अपना टाइम टेबल ऐसा बनाइए प्लीज टीचर, शेड्यूल ऐसा बनाइए कि आपको रात को जब भी फ्री हो, रात को नहीं जब भी फ्री हो, आप 15 मिनट आपको डिवोट करने हैं, एक स्टोरी पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। और वो पढ़ेंगे तभी तो आप देखेंगे, अच्छा ये आज मैंने टेंसेस किए, अच्छा यार इसमें, अच्छा हाँ ये टेंस है जो आज क्लास में बताया था। लेकिन अगर आप अपने माइंड को ही ओपन नहीं करोगे उसके लिए, तो आप जहां पे हो वहीं रहोगे,
which I don't want, है ना? तो प्लीज टीचर्स यू हैव टू ओपन आपके फीडबैक में, आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक योर फीडबैक, पर अगर आप उस पर वर्क ही नहीं करोगे तो क्या फायदा ना? अब जैसे ये लैंग्वेज टीचर्स बैठे हैं, ठीक है, डू यू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देम? कभी आपको प्रॉब्लम आती है, डू यू अप्रोच देम? यस, सो द वे यू अप्रोच देम, सिमिलरली यू हैव टू डू दिस थिंग फॉर योर ओन सेल्फ इंप्रूवमेंट। किसी के लिए नहीं, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए करना है आपको, ठीक है ना? कि आपको एक पेज 2 पेज स्टोरीज के पढ़ के सोने एंड सी के दिस इज द वर्ड्स आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एंड देन फाइंड देयर मीनिंग्स। एक और ऑथर मैंने आपको बोला था, रस्किन बॉन्ड, यस, डू यू रिमेंबर? यस, रस्किन बॉन्ड की मैंने एक आध बुक भी आपको रेकमेंड की थी, इफ यू रिमेंबर। नहीं, R.K. नारायण, आई टोल्ड यू दीज ऑथर्स। टीचर्स, तो ये मैंने खाली बताने के लिए नहीं बताया, आपको इनकी एक बुक लेनी है, यू हैव टू गेट वन बुक, व्हिचएवर बुक यू लाइक, ठीक है? जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, एक R.K. नारायण की बुक है स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, ठीक है? इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, इट्स ऑल अबाउट यू नो हाउ स्वामी वांट्स टू हैव अ गुड टाइम विद हिज फ्रेंड्स, और उसमें जो वर्ड्स यूज किए हुए हैं, द स्टोरी दैट इज बिल्ट अप, इट्स ब्यूटीफुल। फिर एक बुक है ब्लू अम्ब्रेला, ये तो मैंने शायद बताई थी लास्ट क्लास में, नहीं, ओके, ब्लू अम्ब्रेला, इट्स अगेन बाय रस्किन बॉन्ड टीचर्स। बहुत छोटी सी बुक है, इट्स नॉट लाइक अ बिग बुक। इसमें इट इज हाउ अ लिटिल गर्ल, 7-year-old गर्ल गेट्स फैसिनेटेड टुवर्ड्स अ ब्लू अम्ब्रेला, हाउ शी गेट्स, शी इज फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, तो वो जाती है, एक छोटा सा ग्रुप पिकनिक के लिए आया होता है, तो उसमें एक बहुत स्मार्ट सी लेडीज बैठी होती है और उनका एक ब्लू अम्ब्रेला होता है जो खुल के पिकनिक बना रहे होते हैं वो सब। तो हाउ शी गेट्स फैसिनेटेड टुवर्ड्स दैट ब्लू अम्ब्रेला is the entire story about, और आप सोच भी नहीं सकते कि ब्लू अम्ब्रेला के अकॉर्डिंगली पूरी स्टोरी रिवॉल्व हो रही है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, पर आपको यू हैव टू पुट एफर्ट ना टीचर्स, है ना? मैं आपको हाथ पकड़ के तो नहीं बोलूंगा कि अब ये बुक पकड़ लो, ठीक है? तो आपको करना है प्लीज टीचर्स, ठीक है? तभी ये लेसन्स का और आपको मजा आएगा, ठीक है? इट विल बी मोर फन, मोर इफेक्टिव, ठीक है? इन द नेक्स्ट सेशन टीचर्स, मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि आपने कौन सी बुक पढ़नी स्टार्ट की है इंडिविजुअली, चाहे पूरा सेशन उसमें निकल जाए कोई बात नहीं। तो मैं नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले सबसे ये पूछने वाला हूँ कि आपने कौन सी बुक पढ़ी है, ठीक है? सो यू ऑल हैव टू टेल मी व्हिच बुक यू हैव स्टार्टेड रीडिंग, ठीक है? एंड टेल मी व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दैट बुक। इसके लिए कि मैंने बोली है कि आपको उसमें क्या समझ आ रहा है, और अगर आपको जो बुक्स मैंने रेकमेंड किया वो नहीं पढ़नी, इट्स ओके, आपको कोई और बुक पढ़नी है पढ़ो, बट आई वांट यू टू रीड टीचर्स, ठीक है? ऐसा नहीं कि क्यों मैं बोल रहा हूँ तो आप वो पढ़ो, नहीं, आपको कोई और बुक अच्छी लगती है पर पढ़ो। आई वांट यू टू स्टार्ट डेवलपिंग द हैबिट ऑफ रीडिंग, दैट इज व्हाट आई वांट। आपको पता है मैं रात को खाने के बिना सो सकता हूँ पर पढ़े बिना नहीं सो सकता, अब एक ऐसी आदत पड़ गई है मुझे, और एक स्टोरी पढ़नी है मुझे, नहीं तो मेरे को नींद नहीं आती। चलो मैं थोड़ा कुछ ज्यादा ही कह सकते हो, पर आई डोंट वांट यू टू बी दैट, बट एटलीस्ट आप रीडिंग हैबिट्स डेवलप करो, ठीक है? इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास में करण जी व्हाट आई हैव इन प्लान, और आप भी बताना अगर यू वांट एनी चेंजेस, आई विल ओनली डू एक्सरसाइजेस ऑन टेंसेस, ठीक है? तो मैं उसमें 8-10 एक्सरसाइजेस मैं बना रहा हूँ about tenses, only on tenses, ठीक है? That is what I have planned. अगर आपको कुछ चेंज करना है और if you want something else to be covered, you can have a word with teachers, और आप मुझे बता सकते हैं, no doubt, no problem. अभी हम कुछ टाइम में भी चाह रहा हूँ कि टेंसेस, हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं और 2 सेशंस कम से कम टेंसेस को ही चलाऊं, क्योंकि टेंसेस थोड़ा सा टीडियस है ना सर, तो मैं ये चाहता हूँ टीचर्स, और आपको बेनिफिट भी होना चाहिए ना, क्योंकि एक क्लास में तो नहीं होता, पर नेक्स्ट सेशन में वी विल बी डूइंग मोर एक्सरसाइज ऑन टेंसेस, ठीक है?